Hello students, welcome everyone. So here we are with the part second of the cell chapter. Now in this part we are going to discuss more about the plasma membrane. In the previous part we have discussed the basic aspects of a cell, here in which we understood about the different types of organisms, unicellular, multicellular. Then we also did about the different type of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. अब जो होगा, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सेल के एस्पेक्ट को. One by one we will be discussing about the different components of cell. You know that there are basic three components: plasma membrane, nucleus, and the cytoplasm. So one by one we are dealing with it. Okay, so in this class, in this part, we are going to discuss more about the plasma membrane. But before that, let's give a brief discussion about cell shape. अगर आप यूकैरियोट्स देखते हो, कोई भी यूकैरियोट्स उठा के देखो, तो उनका जो बेसिक शेप होता है, यू गेट इट एज लाइक स्फेरिकल इन शेप. जनरली उनका जो सेल का जो शेप होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन नेचर. But shapes are also variable, as well as there are certain shapes which are fixed. When I talk about the variable shape, I'm talking about amoeba. Amoeba doesn't have a fixed shape. Similarly, when I talk about a fixed type of shape, जैसे जितने भी आपके most of the plants and animals, their cell shape are pretty much fixed. Okay, and there are different types of shape. We have the polyhedral shape, the spherical shape, the branched or the elongated, and sometimes the disc like, and sometimes the spindle like shape. तो shapes हमारे पास बते रहे हैं. Okay, you know that there is a huge collection of shapes over there when we talk about cells. Okay, let's talk about the size. Generally the cell size is measured in micrometers, which is um. It is not u, it is mu m. इसको ऐसे लिखा जाता है. Okay, एंड प्रोकैरियोटिक जो टाइप होता है सेल्स, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स का होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स का होता है. दे डोंट आस्क यू मच अबाउट द क्वेश्चंस इन दिस, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ information I've just given that. Okay, so we'll begin with the structure of cell now. When I talk about the structure of cell, everybody know that it is consisting of a cell membrane, which is also known as a plasma membrane. It is also having nucleus, and it is also having cytoplasm. सो द आउटर बाउंड्री इज़ बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. और जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस में कौन कौन है? इनर इनसाइड अ सेल यू हैव साइटोप्लाज्म, यू हैव न्यूक्लियस, एंड यू हैव सेल ऑर्गेनेलीज. ओके, नाउ लेट्स कम हियर directly. Now when I talk about plasma membrane, okay, so the name itself suggests it is the outer covering of each cell. It is present in plants, animals, as well as microorganisms. ओके, अगर हम इनके फीचर्स पे फोकस करें, तो इनका जो कैरेक्टर है वो लिविंग नेचर का होता है. इट इज़ लिविंग थिंग. देन इट इज़ कंपैरेटिवली थिन, इट इज़ डेलिकेट, इट इज़ इलास्टिक, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ सेलेक्टिव परमिएबल. नाउ दिस इज़ द थिंग वी विल बी डिस्कसिंग मोर टुडे. Selective permeable. Okay, then more about the features. It is made up of proteins, cholesterol, and polysaccharides. Polysaccharides एक कंपाउंड होता है जिसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज का एक मिक्सचर होता है. ओके, सो ये आपके फीचर्स हो गए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम बेसिक फंक्शंस पे देखें ज़रा, तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस आते हैं. सो पहला जो फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर. यू नो दैट अगर आउटर कवरिंग है तो बेसिक फंक्शन इसका प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा. देन इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल. मतलब सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आनी चाहिए और सेल से बाहर कौन सी चीज़ें जानी चाहिए, वो सब कौन मैनिपुलेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है. ये बाहर से केमिकल मैसेंजर्स को रिसीव करता है. एक्ट एज रिसेप्टर्स तरीके से आप एक मान के चलो, हमारे बॉडी में ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चीज़ होता है. सो सेल के बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसके उसके अगेंस्ट जब एक सेल रिस्पॉन्ड करता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रिसेप्टर के तरह भी काम करता है. इट विल रिएक्ट टू दी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग आउटसाइड द सेल. ओके, एंड सिमिलरली सेल की मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ सेल, सेल से निकलने वाले सेक्रेशंस एंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस की किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, ये सारी चीज़ें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में लिख सकते हो. तो मैंने इसलिए 3 हेडिंग्स में दिए. बेसिक तो मैंने आपको दे दिया डेफिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है. ओके, then we have understood about the basic features of plasma membrane, right? And then we have understood about the basic functions of plasma membrane. Okay, so go through it, एक बार अच्छे से स्टडी करिए. right? Now we will move on further. हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी.
Okay, so plasma membrane is a selective permeable membrane. Now what do you mean by selective permeable? उसका मैंने लॉजिक मैंने यहाँ पे समझा रखा हुआ है. So let's focus here. Selective permeability, see here. Okay, so what does it means? It means it ensures many things. First of all, only useful molecule enter the cell. Okay, metabolic intermediaries remain within the cell. ओके इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब है सिर्फ वही चीज़ें सेल के अंदर आ सकती है जो कि बहुत नेसेसरी है, और सिर्फ वही चीज़ें सेल से बाहर जा सकती है जो कि नेसेसरी है, राइट. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ अ सेल, दैट इज़ व्हाट अ सेलेक्टिव परमिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट. ओके, देन अगर कोई सेक्रीशन मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज़ करना. सेक्रीशंस हो रहे हो या फिर वेस्ट है तो वो वेस्ट को सेल से बाहर निकालना, यानी कि एक कांस्टेंट इंटरनल मूवमेंट को इनेबल करता है कौन? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी? इट एंश्योर्स द यूजफुल मॉलिक्यूल टू एंटर द सेल. सेकेंडली, इट एंश्योर्स द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएटरीज रिमेन विद इन द सेल, सारी चीज़ें निकल के बाहर ना आ जाए. Then thirdly, it ensures the secretions and waste leave the cell. And fourth, it enables the cell to maintain a constant internal movement. That is what selective permeability means. Then we will understand what are the basic substances which go inside the cell. So let's see कौन कौन cell के अंदर जाता है. Food, water, salts, oxygen, vitamins, hormones and regulatory substances. तो ये सारी की सारी चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. मेटाबॉलिज्म मतलब आपको पता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक सेल को ज़िंदा रखने में हेल्प करता है, यानी कि हेल्प्स अ सेल. So these are basic essentials which keep a cell survive, helps in the survival of a cell. That is what the metabolic activity. So metabolic activities के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सेल के अंदर कौन लेकर आ रहा है? सेलेक्टिव परमिबिलिटी के हेल्प से अंदर आ रहा है. अब ये देखते हैं कि सब्सटेंसेस जो सेल के बाहर जा रहा है, कौन कौन जाता है बाहर? वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली जाएगा, वो अंदर एक्यूमुलेट तो होगा नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा बिकॉज ये एक रेस्पिरेटरी वेस्ट गैस है. देन सेक्रीशन, अभी मैंने बोला कि सेल कभी कभार सेक्रीट करता है, रिलीज़ करता है, जैसे प्रोटीन रिलीज़ करता है, हार्मोन्स, तो ये सारा सेल से बाहर भी जाता है. तो सेलेक्टिव परमिबिलिटी का एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया, बिकॉज दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव permeability. Selective permeability मतलब restricted entry and exit of materials within and outside the cell. अब ये जो सेल से अंदर और बाहर जाने वाले जो मूवमेंट है, यानी कि टाइप ऑफ मूवमेंट हमारा, नाउ आई एम कमिंग हियर. टाइप ऑफ मूवमेंट हमारे पास दो है, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस. नाउ दिस डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन विच यू हैव डन इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री डिफ्यूजन क्या था? द स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन ऑफ और ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे एक अलग चीज़ हो रहा है. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन until यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड. मतलब मान लो एक तरफ पानी ज़्यादा और एक तरफ पानी कम है, तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ किसी मीडियम से, तो उस मीडियम से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है? देयर इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पॉसिबल है, ठीक है. सो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब है अपने आप. सो जब कोई भी पार्टिकल्स अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? उस टाइप ऑफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है, मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, और दूसरी बात इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. कब तक मूवमेंट होता जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता. इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि दोनों सरफेस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक मूवमेंट होता रहेगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस जो होता है, इट इज़ बेसिकली द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. स्पेसिफिकली कौन सा मॉलिक्यूल्स? water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Now, here is the catch. If you compare diffusion and osmosis, सबसे पहला जो difference आपको मिलेगा, ऑस्मोसिस सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल के लिए? वाटर मॉलिक्यूल के लिए. अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अगेन स्पॉन्टेनियस है, सेम है. लेकिन एक जो फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्या है? ऑस्मोसिस सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी में कौन यूज़ होता है? इट इज़ बेसिकली द ऑस्मोसिस.
ऊपर मैंने आपको सेलेक्टिव परमिएबल बताया था ना, दैट इज़ व्हाट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज. ओके, सेलेक्टिव परमेबिलिटी या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोथ आर सेम, राइट. तो डिफ्यूजन आपने देख लिया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जब तक इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ना हो. और ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में मैंने इसका एक डिफरेंस प्रिपेयर किया है. लेट्स लुक इनटू दैट. सबसे पहले तो ये मैं समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. Osmosis involves movement of solvent molecules, specifically water molecules, whereas diffusion involves movement of solid, liquid and gas. तीनों में होता है. ऑस्मोसिस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस नहीं होगा. लेकिन डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉट रिक्वायर्ड. ओके, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत आई मीन इट्स नॉट दैट मैंडेटरी देयर. ऑस्मोसिस में इक्विलिब्रियम अचीव होना मुश्किल है, डिफ्यूजन में इक्विलिब्रियम अचीव बहुत आसानी से हो जाता है. सो ये है हमारा जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ओके, नाउ लेट्स talk about type of solution. Now this is the NCERT thing which you need to cover on a specific basis. There are 3 types of solution: hypotonic, isotonic and hypertonic solution. Okay, बहुत आसान है समझना. अगेन यहाँ पे ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलेगा. सबसे पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं. क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन? वो कह रहा है इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. मान लो मैंने एक बीकर में, मान लो कोई मैंने सेल ले रखा है. ओके, सेल में पानी का कंटेंट, ये मान लो कोई सेल है, सेल में वाटर का कंटेंट कम है और सेल के बाहर ये जो मीडियम है उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ को होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो मीडियम से सेल की तरफ मूवमेंट होगा पानी का थ्रू ऑस्मोसिस. वही मैंने लिखा हुआ है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. थोड़ी देर बाद आप इस बीकर को उठा के देखोगे तो आपका सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो चुका होगा. क्यों भैया? क्योंकि सराउंडिंग से पानी उसके अंदर घुस गया. सच काइंड ऑफ सोल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ओके, अगेन मैं एक और बार आपको मैं समझा रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बीकर लेके रखा हुआ है. ओके, और इस बीकर में सोल्यूशन है और इस बीकर में एक सेल है. ओके, जब मैंने सेल देखा, सेल में पानी का कंटेंट कम है और ये जो आपका मीडियम है उस मीडियम में पानी का कंटेंट ज़्यादा है. तो डेफिनेट सी बात है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ को होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो मीडियम से सेल की तरफ ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का मूवमेंट होगा और थोड़ी देर बाद जब आप वो बीकर उठा के देखते हो तो सेल आपका स्वेल हो चुका होता है क्योंकि उसमें पानी भर चुका होता है. ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशंस. दूसरा जरा देखते हैं हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल will lose water by osmosis and cell will become shrink. Cell will shrink. Okay, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बीकर है मेरा और ये मेरा सेल है. ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो मीडियम है, मीडियम में पानी का कंटेंट कम है और सेल में पानी का कंटेंट ज़्यादा है. तो अब क्या होगा, सेल से पानी निकल के बाहर जाएगा. क्यों? क्योंकि सेल में ज़्यादा पानी है और मीडियम में कम है. तो क्या होगा यहाँ पे, थोड़ी देर बाद अगर आप बीकर उठा के देखोगे सेल छोटू सा हो चुका होगा. सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. सच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो ये ऊपर वाले से बिल्कुल उल्टा है. तीसरा जो सोल्यूशन आप देखते हो वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक क्या है भैया, अगर आपका मीडियम और सेल दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पे है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि नो ऑस्मोसिस विल अकर. ओके, no osmosis will occur. Such kind of solutions are known as isotonic solutions. तो ये आपको सेल चैप्टर से क्यों रिलेट किया गया, बिकॉज समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि रेड ब्लड सेल्स को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दिया या फिर सम क्वेश्चंस. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सोल्यूशन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूशन में पानी का क्या कॉन्सेंट्रेशन है और सेल में पानी का क्या कॉन्सेंट्रेशन है. अगर सेल
स्वेल हो रहा है, मोटा हो रहा है, यानी कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आपका सेल श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और अगर आपके सेल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये आपका ऑस्मोसिस था, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर और बाहर पार्टिकल्स कैसे जाते हैं, थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं। ओके, बट इसके अलावा एक और टाइप ऑफ मूवमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, इसका नाम है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। सो कुछ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करता है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट होता है उसमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर मूवमेंट कराना है तो वो कौन कराएगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कराएगा। इनको बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट्स। तो अगर आप ऊपर आएंगे अभी यहाँ पर, ओके, नाउ आई एम फोकसिंग हेयर, राइट। तो दो तरह के मूवमेंट आपको नजर आएंगे, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड रिस्पॉन्स है या एक रैपिड प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है। डिफ्यूजन आपने देखा वो स्लो प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मटीरियल्स मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। मटीरियल मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला फंडा हो, उसके अलावा भी हो सकता है। लेकिन डिफ्यूजन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना ज़रूरी है, हायर लोअर वाला फंडा होना ज़रूरी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, अंदर से बाहर, लेकिन डिफ्यूजन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूजन के लिए कोई प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से, हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन से काम चल जाता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी को लगाना पड़ता है, यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके एक मटेरियल होता है जो कि एनर्जी कंटेंट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिफ्यूजन के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि समटाइम्स स्कूल वाले दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। ओके, सो अभी ये हमने कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कवर कर लिया है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन कवर कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, हम 3 टाइप के मूवमेंट्स और देखेंगे, क्योंकि ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग सिर्फ मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो एक है एंडोसाइटोसिस, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंजेक्शन मतलब होता है व्हेन यू इनटेक मटेरियल्स। ओके, जब एक सेल मटेरियल को इनटेक करता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, जैसे इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो सेल के बाहर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके, या फिर खाना खाने के लिए जो भी आप बाहर से लेते हो, न्यूट्रिटिव प्रोसेस, जो सेल बाहर से जो भी खाना एब्जॉर्ब करते हैं, उन सबको आप किससे रेफर करते हो? एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है भैया? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, स्पेसिफिकली कौन? अमीबा, बाय फॉर्मिंग अ सीडोपोडिया अराउंड द फूड। आपको पता होगा कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, वो क्या करता है? एक फॉल्स फीट क्रिएट करता है फूड के अराउंड और उसको कैप्चर करता है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा यूजिंग अ सीडोपोडिया इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ओके, देन लास्ट में आता है एक्सोसाइटोसिस। देखिए थोड़ा फनी नाम है, एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है सेल वॉमिटिंग। तो जो भी कुछ सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, ओके, उसको एक्सोसाइटोसिस हम रेफर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट या फिर एक्सट्रूड, जिसको एक्सट्रूड भी बोला जाता है, द कंटेंट्स टू द सराउंडिंग मीडियम इज व्हाट नोन एज एक्सोसाइटोसिस। जैसे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल्स, या फिर सेक्रीशन हो किसी सब्सटेंसेस का लाइक हार्मोन्स और एंजाइम्स। तो इन सबको किससे रेफ़र करते हैं? हम एक्सोसाइटोसिस से रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट है जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेट करना है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले जब हमने शुरुआत किया था तो हमने सेल शेप और सेल साइज़ से शुरुआत किया था, इज़न्ट इट? तो हमने देखा कि अलग अलग टाइप के शेप होता है और अलग अलग टाइप का साइज़ भी होता है। देन हमने ये देखा कि देर आर 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोकस किया। आउटर कवरिंग होता है, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीनों में होता है। फीचर्स हमने देखे, उसके फंक्शंस देखे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो दो टाइप के एक स्पेशल टाइप का एक मूवमेंट शो करता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करता है, यानी कि स्पेसिफिक एंट्री एंड एग्जिट शो करता है मटेरियल्स का, वो हमने कवर कर लिया।
कौन कौन सी चीज़ें अंदर जाती है, कौन कौन सी चीज़ें बाहर जाती हैं, वो देखा हमने. देन हमने देखा टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वन इज़ ऑस्मोसिस एंड वन इज़ डिफ्यूजन. उसका हमने डिफरेंसेस भी देख लिया यहाँ पे, राइट. एंड देन थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो उसके बारे में स्टडी किया. अगर सेल स्वेल हो रहा है तो हाइपो, अगर सेल श्रिंक हो रहा है तो हाइपर, और अगर सेल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आइसोटोनिक. देन हमने एक मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट देखा जहाँ पे प्रोटीन्स की हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बीच में एक डिफरेंस देखा. एंड फाइनली एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में भी स्टडी कर लिया. सो ये पूरा कंटेंट है जो आपको स्टडी करना है व्हेन इट कम्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए. सो व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड बैक जो जो पार्ट्स हैं उसके रिविजन करके ही आप बैठे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो आई एम wrapping it up today. We'll continue in the next part and revise the content, make the proper notes. Okay, so thank you so much, students, and take care of yourself. Thank you.